ہے کس کے تخیل کا شہکار اودھ نامہ۔ ناظرین آداب، 27 شوال المکرم مطابق 20 جون 2020 کے اودھ نامہ کے وائس ایڈیشن میں میں ہارون رشید آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ صفحہ اول کی شہ سرخی میں وزیر اعظم نریندر مودی کا بیان ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستانی زمین پر کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا، چینی جارحیت پر پورا ملک متحد ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق چین سرحدی صورتحال پر کل جماعتی اجلاس میں چین سرحد کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے بلائے گئے آل جماعتی اجلاس کے اختتام پر یقین دہانی کرائی کہ ہندوستانی فوج کسی بھی چیلنج کا سامنا کرنے کی اہل ہے اور یہ کہ تینوں فوجیں مل کر مہم چلا سکتی ہیں۔ مسٹر مودی نے کہا نہ وہاں کوئی ہماری سرحد میں داخل ہوا ہے اور نہ ہی ہماری پوسٹیں کسی اور کے قبضے میں ہیں۔ لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر شہید ہونے والے فوجیوں کو یاد کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہمارے 20 بہادر شہداء لداخ میں مارے گئے تھے، لیکن جنہوں نے مادر ہند کی طرف نگاہ اٹھائی تھی وہ انہیں سبق سکھانے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری فوج ملک کے تحفظ کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی ہے۔ ہماری فوج پانی، زمین اور آسمان سے ملک کی حفاظت کے لیے جو کچھ کرنا ہے وہ کر رہی ہے، کوئی بھی زمین پر نگاہ نہیں اٹھا سکتا۔ اسی خبر میں یہ باکس بھی ہے کہ کل جماعتی اجلاس میں آر جے ڈی اور آپ پارٹی کو مدعو نہیں کرنے پر حکومت کی تنقید بھی کی جا رہی ہے۔ کانگریس صدر سونیا گاندھی کا بیان بھی سرخی میں شائع ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ چین بحران پر ملک کو تاریکی میں رکھا گیا۔ تفصیلات کے مطابق کانگریس کی صدر سونیا گاندھی نے چین کی سرحد پر پیدا ہونے والے بحران سے متعلق واقعے پر ملک کو اندھیرے میں رکھنے کا الزام لگاتے ہوئے آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ اس معاملے کی مکمل تفصیلات اشتراک کر کے حزب اختلاف کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے۔ ڈی ایم لکھنؤ کا یہ بیان بھی پہلے صفحے پر ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سرکاری اراضی پر قبضہ کرنے والوں کی خیر نہیں۔ خبر کے مطابق راجدھانی میں تالاب، چراگاہ سمیت سرکاری اراضی پر قبضہ کرنے والے زمین مافیاؤں کے خلاف ضلع مجسٹریٹ ابھیشیک پرکاش نے بڑی کارروائی کی ہے۔ جمعے کو ضلع مجسٹریٹ ابھیشیک پرکاش نے بجنور اور تیلی باغ میں تالابوں کا معائنہ کیا اور زمین مافیاؤں کے خلاف کارروائی کی۔ اس کارروائی کے دوران 100 کروڑ سے زائد کی املاک زمین مافیاؤں کے چنگل سے چھڑائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آندھرا پردیش میں راجیہ سبھا کی 4 سیٹوں پر وائی ایس آر کا قبضہ ہونے، شرجیل امام کے خلاف قانونی چارہ جوئی روکنے سے سپریم کورٹ کے انکار کرنے اور وزیر مالیات کی طرف سے ریپو ریٹ میں چھوٹ کا فائدہ صارفین کو دیے جانے کی حکومت کے ذریعے نگرانی کیے جانے کا بیان بھی صفحہ اول پر شائع ہوا ہے۔ عالمی خبروں کے صفحہ جہانما پر پہلی سرخی اس طرح ہے، ٹرمپ کے سابق مشیر نے ٹرمپ کو صدارتی دفتر کے لیے نااہل بتایا۔ خبر میں بتایا گیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہلے ہی نسل پرستانہ مخالف مظاہروں اور کووڈ-19 پر اپنے متنازع رد عمل کی وجہ سے تنقید کا سامنا کر رہے ہیں اور اب امریکی صدر کو اپنے قومی سلامتی کے سابق سیکرٹری جان بولٹن کی طرف سے داخلی حملے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق جان بولٹن نے کہا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ٹرمپ صدارتی عہدے کے لیے فٹ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس کام کو انجام دینے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اسی خبر سے منسلک خبر میں ہیلری کلنٹن کا بیان ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ صدارتی انتخابات میں ٹرمپ کو شکست ہوگی۔ خبر کے مطابق امریکہ کے سابق وزیر خارجہ اور 2016 میں امریکہ کی صدارتی امیدوار ہیلری کلنٹن نے کہا ہے کہ نومبر کے مہینے میں ہونے والے صدارتی انتخاب میں امریکی صدر ٹرمپ کو شکست ہوگی۔ ہیلری کلنٹن نے اسکائی نیوز ٹیلی ویژن چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کورونا وائرس اور اس سلسلے میں ٹرمپ کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے ہونے والے صدارتی انتخاب میں ٹرمپ کو شکست ہوگی۔ دوسری طرف ٹرمپ کا یہ بیان بھی نمایاں کیا گیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ چین کے ساتھ تمام تعلقات ختم کرنے کا آپشن موجود ہے۔ خبر کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ چین کے ساتھ اقتصادی روابط سمیت ہر طرح کے تعلقات مکمل طور پر ختم کرنے کا آپشن موجود ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکی انتظامیہ کے پاس چین سے تمام روابط ختم کرنے کا اختیار ہے اور ہم یہ اختیار کسی بھی وقت استعمال کر سکتے ہیں۔ ادھر چین نے کہا ہے کہ معاہدے سے یک طرفہ طور پر امریکہ کا ہٹنا اس کی غنڈہ گردی تھی۔ اس خبر کے تحت بتایا گیا ہے کہ عالمی ایٹمی ادارے کے بورڈ آف گورنرز میں چینی نمائندے نے خبردار کیا ہے کہ ایران مخالف معاہدہ نہ صرف ایٹمی معاہدے کو بلکہ ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے کے نظام کو بھی تباہ کر دے گا۔ بین الاقوامی تنظیموں میں چین کے نائب سفیر وائشنگ دائی نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں ایران کے ایٹمی معاہدے کو بچانا اور اس پر عمل درآمد کرنا ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے مسئلے کو حل کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ انہوں نے ایٹمی معاہدے سے امریکی علیحدگی کو یک طرفہ غنڈہ گردی قرار دیا جس سے تناؤ پیدا ہوا ہے۔ چینی عہدیدار نے امریکہ سے جوہری معاہدے میں کیے گئے اپنے وعدوں اور یونائیٹڈ نیشن کی سلامتی کونسل کی قرارداد کے تحت اپنے وعدوں کو پورا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
मुसलसल 90 रोज की बंदिश के बाद मक्का की 1560 मसाजिद खोलने के फैसले की खबर को भी सफा नंबर 2 पर बाएं जानिब सुर्खी में नुमाया किया गया है। खबर के मुताबिक सऊदी अरब की वजारत मजहबी उमूर की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि मक्का मुअज़्ज़मा की 1560 मसाजिद को इतवार से नमाज के लिए खोल दिया जाएगा। सऊदी अरब की हुकूमत ने कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर मक्का मुअज़्ज़मा की बंद की गई तमाम मसाजिद को इतवार की नमाज फज्र से एहतियाती तदाबीर के साथ खोलने का फैसला किया है। वजारत मजहबी उमूर की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक मक्का मुअज़्ज़मा की मसाजिद में बाजमात नमाज की इजाजत दिए जाने के साथ साथ एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की भी सख्ती से ताकीद की गई है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस से कल अदम करार। इत्तलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस को कल अदम करार दे दिया है। अदालत ने जुमे को मुख्तसर फैसला सुनाते हुए जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से रेफरेंस को कल अदम करार देने की दरख्वास्त भी काबिल समाअत करार देते हुए मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने मुत्तफिका तौर पर सदारती रेफरेंस को कल अदम करार दिया है। नाज़रीन, 20 जून के अवधनामा के सफा 3 पर पहली सुर्खी में वजीर आला आदित्यनाथ योगी का वो बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि रियासती हुकूमत गन्ना किसानों को पाई पाई की अदायगी के लिए पुरअज़्म है। इत्तलात के मुताबिक वजीर आला ने अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर मौजूदा हुकूमत के दौरे इख्तिदार में गन्ना किसानों के 1 लाख करोड़ रुपए की ऑनलाइन अदायगी के प्रोग्राम को खिताब किया। उन्होंने कहा कि हर किसान को अपनी मेहनत का सिला मिलना चाहिए। रियासती हुकूमत गन्ना किसानों को पाई पाई की अदायगी के लिए पुरअज़्म है। जब तक गन्ना किसानों के खेतों में एक भी गन्ना मौजूद है, शुगर मिलें चलती रहेंगी। ये करारदाद हुकूमत ने तैयार की है। इसी खबर के बॉक्स में वजीर आला का एक और बयान भी सुर्खी में है जिसमें उन्होंने कोविड-19 इन्फेक्शन के दौर में लोगों को बेहतर सेहत खिदमात मुहैया कराने पर जोर देते हुए कहा है कि अस्पतालों में मरीजों के रजिस्ट्रेशन काउंटर की तादाद में इजाफा हुआ है। खबर के मुताबिक वजीर आला आदित्यनाथ ने कोविड इन्फेक्शन के खतरनाक दौर में लोगों को बेहतर सेहत खिदमात मुहैया कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश पर जोर दिया है। वजीर आला ने कंटेनमेंट जोन में डोर स्टेप डिलीवरी सिस्टम को आसानी से चलाने की हिदायत भी दी है। उन्होंने कहा कि साफ सफाई के काम को मुसलसल जारी रखा जाए और नालियों की सफाई का काम तेजी से किया जाए। सफे के दरमियानी हिस्से में अमित मोहन प्रसाद के हवाले से खबर है कि यूपी में एक दिन में रिकॉर्ड 817 नए मामले रोशनी में आए हैं। रियासत में सैंपल लेने की तादाद में एक बार फिर इजाफा हुआ है। खबर के मुताबिक यूपी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सेहत अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि रियासत में इन्फेक्शन का इलाज कराने वाले लोगों की तादाद 6092 है, जबकि मुकम्मल सेहतयाब होने के बाद 9995 अफराद को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सेहत अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि कोविड-19 इन्फेक्शन की वजह से गुज़श्ता 24 घंटों में 19 मजीद अमवात के साथ इन्फेक्शन से मरने वालों की तादाद अब 507 तक जा पहुंची है। अपना वतन सफ़े की पहली खबर में दिल्ली बाशिंदगान के लिए राहत की खबर शाये हुई है, जिसमें मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के जरिए कोरोना जांच की फीस तकरीबन आधी करने के बाद अस्पतालों की इलाज फीस में भी कमी की गई है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि डॉक्टर पॉल की इलाज में बड़ी कटौती की सिफारिशात को हुकूमत ने तस्लीम कर लिया है, जिससे दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना वायरस के इलाज का खर्च 3 गुना तक कम हो जाएगा। बताते चले कि कोरोना के मामले में दिल्ली मुल्क में तीसरे नंबर पर है। दूसरी जानिब शायद खबर से दिल्ली के वजीर सेहत सत्येंद्र जैन की तबीयत के बिगड़ने का इल्म हो रहा है, जिनको फेफड़े में इन्फेक्शन बढ़ जाने के बाद ऑक्सीजन पर रखा गया है। जराये के मुताबिक वजीर जैन को निमोनिया हो गया है और उन्हें इलाज के लिए जुमे को जुनूबी दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया है। उनका इलाज प्लाज्मा थेरेपी से किया जाएगा। सफे के ज़ेली हिस्से में CAA और NRC में लंगर लगाने वाले DS बंद्रा पर FIR होने की खबर नुमाया है। बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ पुलिस ने दिल्ली फसाद में हलाक कांस्टेबल रतन लाल कत्ल मामले से मुताल्लिक चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट से एक तरफ तो DS बंद्रा हैरान है और दूसरी तरफ सेकुलर जहन अफराद दिल्ली पुलिस के खिलाफ आवाज बुलंद करने लगे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के सेक्रेटरी नवेद हामिद ने भी ट्वीट करके दिल्ली पुलिस के इस अमल की मजम्मत की है और कहा है कि सियासी आकाओं की हिदायत पर बेकसूरों को हदफ बनाना मुनासिब नहीं। गौरतलब है मिस्टर बंद्रा ने लंगर लगाने के लिए अपना फ्लैट फरोख्त कर दिया था। महाराष्ट्र के वजीर दाखिला अनिल देशमुख से अमीश की फौरी गिरफ्तारी के मुतालबे को सफे के दरमियानी हिस्से में जगह मिली है। ये मुतालबा सीनियर कांग्रेसी कायद और साबिक वजीर मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने उनसे एक मुलाकात के दौरान किया है। न्यूज 18 के एंकर अमीश देवगन ने सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की शान में गुस्ताख आमेज अल्फाज कहे थे। इम्तियाज सरमद JP यूनिवर्सिटी के राजा सिंह कॉलेज में बहसियत असिस्टेंट प्रोफेसर मुकर्रर। इम्तियाज सरमद ने दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया से B.Ed किया और JNU से MA और MPhil की डिग्रियां हासिल की। दिल्ली उर्दू अकादमी के जरिए MA और MPhil की डिग्री पर उन्हें टॉपर अवार्ड से भी नवाजा गया है। इन खबरों के अलावा
कांग्रेस ने राहुल गांधी के यौम पैदाइश के मौके पर खून का अतिया और यतीमों में खाना तकसीम किया। आम आदमी पार्टी के वजीर संजय सिंह का बयान, हिंद चीन सरहद के तनाज़े पर हुकूमत का रवैया बदबख्ताना। और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कोर्स के चौथे साल की तालिबा सना कदीर को आलमी आर्ट मुकाबले में कार्टून एंड इलस्ट्रेटर्स जुमरे में फातेह के तौर पर मुंतखब होने की खबर भी नुमाया है। मुअज़्ज़िज़ सामीन आदाब, मैं कहकशां इरफान लेकर हाजिर हूँ फिर एक बार आपकी खिदमत में अवधनामा के सफ़े नंबर 9 अज़ला की सुर्खियाँ। बढ़ती है सफ़े की पहली सुर्खी की तरफ जो सहारनपुर से है। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, नौजवानों पर चीनी हमला और सरकारी नाकामी। तमिलनाडु की कांग्रेसी अक़लियत सेल के चेयरमैन कांग्रेस के कौमी लीडर असलम बादशाह ने आज अपने हजारों साथियों के साथ बीजेपी क़यादत की हुकूमत की कमजोरियों, नाकामियों और चीनी हमले के खिलाफ वेल्लोर से दिल्ली तक मार्च निकालने का जबरदस्त हौसला दिखाते हुए आज अपने हजारों साथियों के हमरा गिरफ्तारी दी। इस मौके पर आपने मरकजी हुकूमत की फौजियों की शहादत पर खामोशी अख्तियार करने पर सवाल उठाते हुए मरकजी और रियासती भाजपाई सरकारों को अपने अपने कामों में नाकाम बताया और मरकज से इस्तीफा की मांग की। असलम बादशाह ने कहा कि दलितों और मुस्लिमों को जगह जगह जुल्म जबर का निशाना बनाया जा रहा है। जहां आज मध्य प्रदेश में मुस्लिम जवानों पर हमला किया गया, वहीं आज देवबंद में भी असरार अहमद को पीट पीट कर कत्ल कर दिया गया। पुलिस भी तमाशाई बनी हुई है और मीडिया भी जहर अफशानी कर रहा है। इन दिनों हमारे सूफियाए किराम और बुजुर्गान दीन को भी निशाना बनाया जा रहा है। मुल्क में मुस्लिम अफराद बद से बदतर हो रहे हालात जिंदगी पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कांग्रेस के मुहज्जब कायद असलम बादशाह ने सीधे तौर पर कहा कि कपिल मिश्रा, बबीता फोगाट, सोनाली फोगाट, अमीश देवगन, सुधीर चौधरी, साध्वी प्रज्ञा, संगीत सोम, ब्रजेश सिंह, विक्रम सैनी, डॉक्टर आरती लालचंदानी और गिरिराज सिंह के बयानात ने मुल्क के सेकुलर नजरिए को तहस नहस करके रख दिया है। मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और भूखमरी और बेचैनी का माहौल है। जो काबिल जज और अफसरान सच बोलना चाहते हैं, उनकी आवाज का गला घोंट दिया जाता है और रातों रात उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है, क्योंकि बीजेपी हुकूमत को अच्छे, सच्चे और ईमानदार अफसरान पसंद नहीं है। सफा नंबर 9 की दूसरी अहम सुर्खी ख्वाजा साहब की शान में गुस्ताखाना कलमात अदा करने वाले न्यूज एंकर के खिलाफ गम गुस्सा और रंज के इजहार से मुताल्लिक है। अजीमुल मर्तबत दाई इस्लाम वलीउल्लाह बिला तफरीक मजहब व मिलत, हर शख्स हर मजहब की अकीदत व मोहब्बत के महवर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में न्यूज 18 के एंकर अमीश देवगन के जरिए जो गुस्ताखी की गई है और चीन ने जो नारवा सलूक हमारे फौजियों के साथ किया, चीन की इस शर्मनाक और गुस्ताखाना हरकत पर बाराबंकी जिले के तमाम सियासी और समाजी शख्सियात में बेहद गम गुस्से की लहर है। सफा के वस्त में कोरोना से मुतालिक है। संभल के सराफा बाजार में छाया सन्नाटा, हॉट स्पॉट के बाद हुआ सील। संभल जिले से खबर है कि महकमे सेहत के लिए कभी खुशी और कभी गम का दिन आता है। एक रोज अच्छी रिपोर्ट से चेहरे खिल जाते हैं और दूसरे ही दिन एक साथ 1 दर्जन से ज्यादा पॉजिटिव केस आने पर महकमे सेहत के जिम्मेदारान में खलबली मच जाती है। कल 144 रिपोर्ट आई, जिसमें 16 केस पॉजिटिव सामने आने पर महकमे के जिम्मेदारान पसीने पसीने हो गए, जबकि आज 150 से ज्यादा रिपोर्ट मनफी आ चुकी है। कोरोना मुतासरीन की तादाद 252 तक पहुंच चुकी है। अब तक 1 दर्जन पॉजिटिव केस सामने आने पर इलाके को सील कर दिया गया है। आने जाने के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ये सराफा बाजार का इलाका है और सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला बाजार है, मगर इस वक्त सन्नाटा छाया हुआ है। इंतजामिया की जानिब से सख्त पहरा है। सफे पर एक अहम खबर देवबंद से है। कासिमपुरा रोड पर वाक़ मारूफ दीनी दरसगाह दारुल उलूम अशरफिया देवबंद के मौलाना सालिम अशरफ कासमी ने मुसलमानों से टीवी चैनल्स की डिबेट में शामिल न होने की अपील करते हुए कहा है कि चंद नाम नेहाद आलिम टीवी चैनल्स के मुबाहिसों में शरीक होकर दानिस्ता और नादानिस्ता तौर पर मुखालिफिन की साजिशों का हिस्सा बन रहे हैं, जिससे मुसलमान बदनाम हो रहे हैं। वहीं एक खबर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से है। प्रोफेसर अब्दुल मन्नान फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन के नए डीन मुकर्रर हुए हैं। 20 जून को ओहदे की जिम्मेदारी संभालेंगे और अपनी रिटायरमेंट की तारीख 31 जनवरी 2021 तक इस ओहदे पर फाइज रहेंगे। न्यूज 18 के एंकर अमीश देवगन की गुस्ताखाना जुर्रत से पूरे भारत के मुसलमान हैरान परेशान हैं और हर सूबे हर जिले में अमीश के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। खबर आजमगढ़ से है। आजमगढ़ जिले के कस्बा सराय मीर में वाक़े मशहूर मारूफ इदारा मदरसा इस्लामिया अरबिया बैतुल उलूम के नाज़िम आला मुफ्ती मोहम्मद अहमदुल्लाह की तरफ से अमीश देवगन के खिलाफ फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करके जेल की सलाखों के हवाले करने का मुतालिबा किया गया है। उन्होंने कहा कि हजरत चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी दर हकीकत इस्लाम दुश्मनी का वाज़े सबूत। सफर पर एक अहम सुर्खी पुलिस महकमे के अफसरान के बेहतरीन कामों की तारीफ और सराहना से मुताल्लिक है। सहारनपुर में पुलिस कप्तान दिनेश कुमार प्रभु के तबादले के पेश नजर
ऑल इंडिया मिली काउंसिल जिला सहारनपुर के सदर मौलाना डॉक्टर अब्दुल मालिक मोगीसी ने उनसे मुलाकात की और उनके खिदमात के एतराफ़ में ऑल इंडिया मिली काउंसिल सहारनपुर की तरफ से एजाज़ी सर्टिफिकेट और मोमेंटो पेश किया गया और उनकी बेलौस और ईमानदाराना खिदमात को सराहा गया। सामीन, सफ़े के निचले हिस्से में एक अहम सुर्खी प्रयागराज के इलाहाबाद हाई कोर्ट से है। नोएडा के अस्पतालों के जरिए इलाज से इनकार की वजह से एक हामिला खातून की मौत हो गई थी। इस मौत के बाद दाखिल हुई मुफाद आम्मा अर्जी पर समाअत करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत से पूछा है कि प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराए जाने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही है। हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच ने हुकूमत से सवाल किया है कि सूबे में अभी कोरोना टेस्ट के क्या इंतजामात हैं, रिपोर्ट आने में औसतन कितना वक्त लगता है, जांच पर कम अज कम खर्च आए और टेस्ट रिपोर्ट जल्दी आए, इसके लिए क्या इंतजामात किए गए हैं। हाई कोर्ट ने प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों की ओपीडी शुरू करने की मांग पर सुनवाई की थी। अवधनामा के आखिरी सफ़े पर पहली खबर सहाफ़ी सुप्रिया शर्मा के खिलाफ दर्ज मुकदमे पर मुश्तमिल है, जिसकी तफसील इस तरह है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी में उनके जरिए गोद लिए गाँव के ज़िम्न में लॉकडाउन के दरमियान फाका कशी से मुताल्लिक रिपोर्ट शाये करने पर scroll.in सहाफ़ी सुप्रिया शर्मा के खिलाफ वाराणसी के रामनगर थाने में FIR दर्ज की गई है। scroll.in ने 8 जून को अपने पोर्टल पर एक तफसीली रिपोर्ट शाये की थी, जिसके मुताबिक वाराणसी के डोमरी गाँव में लॉकडाउन के ज़माने में लोग भूख से परेशान रहे थे। इसी खबर के बॉक्स में कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी का बयान मौजूद है, जिसमें उन्होंने आईना दिखाने वालों के खिलाफ कार्रवाई को शर्मनाक करार देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत FIR करके हकीकत पर पर्दा नहीं डाल सकती। जमीनी सतह पर इस वबा के दौरान संगीन बदनज़मी है, हकीकत सामने लाने से उनमें सुधार हो सकता है, लेकिन रियासती हुकूमत सहाफ़ियों, साबिक अफसरान और अपोजिशन पर हकीकत सामने लाने से रोकने के लिए FIR दर्ज करवा रही है। चीनी मसनूआत का बाइकाट किया जाए, मौलाना खालिद रशीद के इस बयान से सफ़े की दूसरी अहम खबर का आगाज हो रहा है, जिसकी तफसील में अखबार लिखता है। चीन की जारियत के खिलाफ इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फरंगी महल के ज़ेर एहतमाम नमाज जुमा के बाद सेंटर के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली इमाम ईदगाह लखनऊ की क़यादत में शहरियों ने समाजी फासला बरकरार रखते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें चीन का बाइकाट करो, हम भारत के शहरी चीनी मसनूआत का बाइकाट करने का अहद करते हैं जैसे नारे लगाए गए। शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश करने की खबर सफ़े के ज़ेली हिस्से में है। यह प्रोग्राम अल इमाम वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से हज़रतगंज JPO के नज़दीक मुनक़िद हुआ, जिसमें चिराग जलाकर शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया गया और अल्लाह के हुज़ूर में दुआ की गई कि इस मुश्किल वक्त में अल्लाह उनके अहले खाना को सब्र और तलक़ीन अता फरमाए। खिराज अक़ीदत की मीटिंग में संत गॉडगे सेवा समिति के राजकुमार कनौजिया, इंसानी बिरादरी के आदि योग व समाजी कारकुन जफर आलम हिमायू, बेग बेराज हैदर और दीगर समाजी कारकुनान मौजूद रहे। कोरोना के दौरान हामला खवातीन को रखना होगा खुसूसी ध्यान। आशा वेलफेयर फाउंडेशन की अपील पर राजधानी लखनऊ के वीरांगना झलकारी बाई अस्पताल के डॉक्टर MP श्रीवास्तव ने इन एहतियात के बारे में बताया, जिनको फॉलो करके हामला खवातीन कोरोना वबा के साथ ही दीगर वबा से बच सकती हैं। उन्होंने बताया कि जिन खवातीन को 28 हफ्ते पूरे हो गए हैं, उन्हें अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। इसके लिए आयरन देने वाले खुर्दनी अशिया, प्रोटीन और दूध वगैरह का इस्तेमाल डाइट प्लान के मुताबिक करना चाहिए, ताकि ख्वातीन का जिस्म छोटे मोटे अमराज से आसानी से लड़ सके। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिला में एक नौजवान की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद वो कुनबे के साथ फरार हो गया। इस खबर के बाद महकमे सेहत में खलबली मच गई। वहीं आसपास रहने वाले अफराद को भी इन्फेक्शन होने का खदशा है। पुलिस नौजवान समेत अफराद खाना को ढूंढ रही है। लखनऊ पुलिस की कामयाबी की खबर आखिरी सफ़े की नुमाया इत्तलाआत में से है, जिसमें नए बनाए गए गोमती नगर विस्तार थाने की पुलिस ने 4 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो 50,000 रुपए की लालच में आकर साजिश के तहत एक डेयरी ऑपरेटर को फंसाना चाहते थे, लेकिन CCTV कैमरे ने डेयरी ऑपरेटर पर आने वाली मुसीबत को टाल दिया। पुलिस ने लक्ष्मी मार्केट में वाक़ डेयरी की दुकान से नाजायज तमंचा और गांजा बरामद कर डेयरी मालिक यासीन को गिरफ्तार कर जब पूछगछ की तो पता चला कि डेयरी से बरामद सामान उसका नहीं है, उसे साजिश के तहत फंसाया गया है। पुलिस ने तस्दीक करने के लिए जब आसपास लगे कैमरे के फुटेज चेक किए तो साजिश से पर्दा उठ गया। चाइनीज ऐप पर पाबंदी के हवाले से मुताल्लिक खबर में STF IG अमिताभ ने महकमे के तमाम एहलकारों को 52 चाइनीज ऐप्स हटाने की हिदायत जारी की है। उनका ख्याल है कि इन ऐप्स के इस्तेमाल से डेटा चोरी किया जा सकता है। अमन सिद्दीकी की यौम पैदाइश पर मुबारकबाद। और ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के सदर सैयद अयूब अशरफ कचौचवी का अमीर देवगन से मुताल्लिक बयान भी मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गुनाह की माफ़ी होती है, गुस्ताखी की नहीं।
अवधनामा का पूरा अखबार तफसील से पढ़ने के लिए epaper.awadnama.com पर लॉग इन करें। अवधनामा में शायद सियासी, अदबी और मुतफर्रिक मज़ामीन का तारुफ नाज़रीन की पेश खिदमत है। अवधनामा अपने इदारिये जो हिंद और चीन की कशीदगी मामले पर मुश्तमिल है इस तरह रकम तराज है। अब सवाल यह है कि क्या चीन की मसनूआत का अवामी तौर पर भी बाइकाट किया जाएगा और क्या हकीकत में इस पर अमल भी हो सकेगा। दरअसल हम हिंदुस्तानियों की आदत यह है कि चीज़ सस्ती होना चाहिए चाहे उसकी क्वालिटी बेहतर ना हो। हमारी इस आदत या ज़हनियत का फ़ायदा चीन ने उठाया और हमारे बाज़ारों को सस्ते चीनी सामानों से पाट दिया। आज जब हुब्बुल वतनी के जज्बे के तहत लोग चीन की मसनूआत का बाइकाट की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कितनी चीनी मसनूआत को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर हुब्बुल वतनी का सबूत देंगे ये तो वक्त ही बताएगा। इसी उन्वान से ताल्लुक़ रखने वाला दूसरा मजमून डॉक्टर सलीम खान का है, जिसमें वो अब तक के हालात का जायजा लेने के बाद लिखते हैं, चीनी फौज के साथ सरहद पर होने वाले हालिया तसादुम में पहले तो एक फौजी अफसर समेत 3 हिंदुस्तानी जवानों के फौत होने की खबर आई। इसके साथ ये भी कहा गया कि सड़क की तामीर का काम करने वाले कुछ मजदूरों को चीनी अपने साथ ले गए। आगे चलकर ये बात सामने आई कि अगवा शुदा अफराद फौजी हैं और फिर उनकी लाशों के आने का सिलसिला शुरू हो गया, जिनकी तादाद 20 या 30 बताई जा रही है। ये तरह तरह की कयास आराइयाँ इसलिए हो रही है क्योंकि हुकूमत चुप्पी साधे बैठी है। वो नशिस्त पर नशिस्त कर रही है, लेकिन सानहे के 24 घंटे बाद भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब ये पता चला है कि मुल्क पर अपनी जान निछावर करने वाले फौजी उसी बिहार के हैं जिनसे अमित शाह वोट मांग रहे थे। राहुल गांधी ने तो उन्हें खराज अकीदत पेश कर दिया, लेकिन अपनी जान देने का अज़्म करने वाले वज़ीर दाखिला की ज़बान से हमदर्दी के 2 बोल भी नहीं निकले। अमरीकी सियाह फामों को शाहीन बाग से मिली तरगीब के उन्वान से नवाब अली अख्तर की तहरीर इदारी सफ़े के दरमियाने हिस्से पर है, जिसमें मकाला निगार लिख रहे हैं, एक ऐसी तब्दीली जो इससे पहले कहीं नज़र नहीं आई वो ये है कि पुलिस, मकामी हुकूमतों, कांग्रेस और सेनेट के लीडरों ने घुटने टेक कर जॉर्ज और जुल्म के शिकार होने वालों को एहतराम, दोस्ती, इंसाफ और अमन का पैगाम दिया है। हथियार उठाने की रिवायत को छोड़ते हुए हथियार डालकर दोस्ती का हाथ बढ़ाने में कोई झिझक, शर्म या घबराहट महसूस नहीं की। दिलों के दरमियान जो बर्फ की दीवार थी वो पिघलना शुरू हो गई। लोगों को रंग और नस्ल के ज़ाहिरी फ़र्क के पीछे यकजहती नज़र आने लग गई है। ये ऐसी तब्दीली है जिस पर कहा जा सकता है कि अमेरिका के इंसाफ पसंदों को ये तरगीब हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग से ही मिली होगी, जहाँ जमहूरियत की हिफाजत के लिए बिला तफरीक आवाम ने खून मुंजमद कर देने वाली सर्दी में भी खुले आसमान के नीचे रात दिन गुजार कर हुकूमत वक्त के तख्त व ताज को हिला कर रख दिया। सफ़े का आखिरी मकाला हिंदुस्तानी जमहूरियत के इस्तेहकाम के मौजू पर डॉक्टर मशहूर अहमद उस्मानी ने तख्लीक किया है, जिसमें आप गुज़िश्ता कुछ नासाजगार वाक़यात की तरफ इशारा करते हुए लिखते हैं, हमारी हुकूमत ने मजलूम की आवाज़ को जुल्म के साथ कुचल दिया, जमहूरियत का मजाक बना डाला, हमें किस लायक छोड़ा। हम अपनी आने वाली नस्ल को देने के लिए जमहूरियत के सेहतमंद मिसालें कहाँ से लाएंगे, या हम उन जेलों में उनका दौरा करेंगे जहाँ उन सारे कारकुनों को सड़ाया जा रहा है। अबर कला उन्वान से एक अफसाना मोइज़ हाशमी का शाये हुआ है, जिससे अदब ज़िंदगी के सफ़े का आगाज़ हो रहा है। अफसाने का एक इक़्तिबास पेश खिदमत है। मेरी प्यारी प्रजा, ऐसे मसरत भरे लम्हात तुम्हें हमेशा मिलते रहे, मुझसे और मेरी हुकूमत से तुम्हारा ये प्रेम हमेशा कायम रहे। मैं हर वक्त तुम्हारी मुश्किलों और दुखों में बराबर का शरीक रहूँगा। आज का ये पैगाम मेरे ख्वाब की हसीन ताबीर से मंसूब है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी मदद से ऐसे हसीन और जमील मंदिर तामीर करूँ जो रहती दुनिया तक तुम्हारे और मेरे प्रेम और महान पुरुष की तालीमात को कायम रखे। आओ मेरे हुकूमत के नामवर फनकारों, आगे बढ़ो और इस अजीम काम को पाए तकमील तक पहुँचाओ। जमील मजहरी की मरसिया निगारी में उसूल बेदारी के उन्वान के तहत डॉक्टर सफीना का मजमून अदब ज़िंदगी सफ़े की दूसरी तहरीर है, जिसमें उन्होंने जमील मजहरी की मरसिया निगारी पर इजमाली तौर पर नज़र डाली है। मजमून का एक इक़्तिबास देखें। जमील मजहरी ने अपने मरसिए कोई मजहबी फरीज़े अंजाम देने की गरज से नहीं कहे, बल्कि वो अपने मरसियों के ज़रिए कौम को बेदार करने और गैरत दिलाने के ख्वाहिशमंद थे। ये वाज़ेह रहे कि जमील मजहरी के यहाँ कौम का तसव्वुर सिर्फ शिया मसलक या मुस्लिम कौम तक न था, बल्कि उनके यहाँ कृष्ण, गौतम, ईसा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं।
वो किसी एक नजरिए के पाबंद ना थे, उन्होंने हर मजहब की अच्छी बातों का असर कबूल किया और जो बात उनको ना भाई उसको छोड़ दिया। जमील मजहरी ने समाज में प्यार बांटने की कोशिश की। उनका ये फलसफा गांधी जी की याद दिलाता है। उनका ख्याल था कि इंसानियत बीमार है और उसे इलाज की ज़रूरत है और वो हर बीमारी का इलाज प्यार को करार देते हैं। उनके मरसिए इंसानियत के पैगामात से लबरेज हैं। वो तमाम इंसानों का मजहब प्यार को करार देते हैं और मजहब को आदम की तरबियत का ज़रिया ख्याल करते हैं। सफ़े की आखिरी तहरीर में अहमद रशीद अलीग ने मोहम्मद अलीम इस्माइल की कहानी छुट्टी का तज़िया किया है, जिसमें वो कहानी का तारुफ कराते हुए लिखते हैं, मोहम्मद अलीम इस्माइल की कहानी छुट्टी भी इंसान की गमनाक कैफियतों का इजहार है और जज्ब व एहसास से ममलू वकील की रूदात भी है। वकील मज़कूरा कहानी का मरकज़ी किरदार है। मज़कूरा कहानी छुट्टी में मोहम्मद अलीम इस्माइल ने मुमकिना तौर पर तमाम तर लवाजिमात और तरकीबी अनासिर का पूरा ख्याल रखा है। आइंदा भी और उम्दा कहानियों की तवक्कुआत मुसन्निफ से वाबस्ता हैं। मुतफर्रिक इशाअती मज़ामीन में पहला मज़मून मोहम्मद सैफुल्लाह का बउनवान इनकलाब दहर की आवाज़ तो बन जाएगा शाये हुआ है, जिसमें वो लिखते हैं, याद रखिए हालात के इशारों को समझकर उसके मुताबिक उठाए गए कदम हमेशा किसी न किसी खुश आइंद मुस्तकबिल की अलामत साबित होते हैं। इसलिए अब यहाँ के मुसलमानों को बहुत ही सूझबूझ और जिम्मेदारी के साथ फैसले लेने के लिए तैयार रहना होगा और उन्हें सोचना होगा कि असेंबली इंतखाबात महज इख्तिदार की तजदीद या मुंतकली के लिए मुनक़िद नहीं होते, बल्कि इंतखाबात किसी भी रियासत की आइंदा 5 साल ज़िंदगी का इनकलाबी मोड़ होते हैं। ऐसी सूरत हाल में अगर होशमंदी से काम लेकर पूरी ईमानदारी के साथ रियासत की तकदीर के फैसले के लिए कदम ना बढ़ाए गए तो कोई बईद नहीं कि बिहार देखते देखते अपनी वो हैसियत खो देगा जिसके लिए वो इन दिनों आलमी सतह पर मुतारिफ है। मैं यहाँ के मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अभी तक अपने सेकुलर मिजाज पर किसी और जहनियत को हावी होने नहीं दिया है। यही वजह है कि ऐसे सियासी मंजरनामे में मुसलमानों की जिम्मेदारियाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ती हुई महसूस हो रही है। आगरा की महमूदा कुरैशी की तहरीर लॉकडाउन और उसके असरात इसी सफ़े पर शाये हुई है, जिसमें उन्होंने कोरोना से मुरतब होने वाले असरात और नुकसानात का जायज़ा लेने के बाद ज़िंदगी को मामूल पर लाने वाले तरीक़ों से बहस की है। सफ़े का आखिरी मज़मून लंदन के फ़हीम अख्तर जिसे बुत बनाया खुदा हो गया के उन्वान के साथ शाये हुआ है, जिसमें वो नस्ल परस्ती की होने वाली शदीद मुखालिफत के ताल्लुक से रकम तराज हैं। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत और अमरीका से शुरू होने वाली नस्ल परस्ती के खिलाफ तहरीक ने धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। अब तो बात यहाँ तक पहुँच गई है कि नस्ल परस्ती के मुखालिफ लोग उन नस्ल परस्त हुक्मरां, बादशाह, कारोबारी और रहनुमाओं के मुजस्समों को भी तोड़ना चाहते हैं जिस पर अभी तक किसी ने उंगली नहीं उठाई थी। लेकिन जब बरतानिया के ब्रसल शहर में 17वीं सदी की एक गुलामों की तिजारत करने वाले शख्स एडवर्ड कॉल्सन का मुजस्समा मुनहदिम करके उसे समुद्र में फेंक दिया तो दुनिया ने इस बात को महसूस किया कि अब नस्ल परस्ती की कमर टूट रही है। मैं उन मुजस्समों के गिरने और टूटने से इसलिए मुतमईन हूँ कि मैं मानता हूँ कि मुजस्समे एक शख्स की अजमत को बयान करता है, न कि एक ऐसे शख्स को जो नस्ल परस्ती की हिमायत, गुलामों की तिजारत, किसी कौम या मजहब से नफरत और कत्ल गारत गरी में मुलव्विस था। और अब जिलों से अवधनामा की खुसूसी रिपोर्ट। गोरखपुर जिले में सफाई कर्मी, चिकित्सक, पुलिसकर्मी और समाज सेवियों की कोरोना योद्धा रूपी ढाल ने बहुत हद तक लोगों को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दिया है। इसी क्रम में कोरोना से लड़ रहे योद्धाओं का भाजपा नेत्री कंचन सोनी द्वारा कोरोना योद्धा महिला थानाध्यक्ष अर्चना सिंह सहित उनके पूरे स्टाफ को सम्मानित किया गया। भाजपा नेत्री द्वारा हिंदू युवा वाहिनी के नगर प्रभारी और उनवल नगर पंचायत के मनोनीत सभासद शिव कुमार शाह को भी सम्मानित किया। अयोध्या में लगातार कई दिनों से रामपुर भगन बाजार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ते देख जिलाधिकारी सहित जिले के अन्य अधिकारियों ने रामपुर भगन बाजार पहुंचकर स्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम दिग्विजय सिंह, सीओ बीकापुर कोमल प्रसाद मिश्र, विकास खंड अधिकारी बीकापुर अमित कुमार त्रिपाठी, ग्राम प्रधान रामपुर भगन दिलीप कुमार चौरसिया, लेखपाल सूर्यभान वर्मा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीकापुर के अधीक्षक सहित स्वास्थ्य टीम और थाना अध्यक्ष तारुण अश्विनी मिश्रा पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रहे। भारत चीन की सीमा गलवा घाटी पर भारतीय सेना के कर्नल समेत शहीद हुए 20 भारतीय सैनिकों के शहीद होने पर सिविल डिफेंस प्रयागराज के वार्डनों ने जवानों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किया। सिविल डिफेंस के वार्डनों ने जनरल करियप्पा द्वार पर एकत्रित होकर 2 मिनट का मौन रखकर सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। सिविल डिफेंस प्रयागराज के उप नियंत्रक ओंकार शर्मा और चीफ वार्डन अनिल कुमार गुप्ता के साथ कई स्वयंसेवकों ने जवानों को श्रद्धांजलि दी।
अयोध्या की रुदौली में रुदौली तहसील के एसडीएम विपिन कुमार सिंह ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए सराहनीय कार्य किया है। उनके द्वारा एक असहाय एवं गरीब बालिका की शिक्षा की व्यवस्था के साथ साथ आर्थिक मदद भी प्रदान की गई है, जिसके लिए तहसील क्षेत्र में उनकी प्रशंसा हो रही है। बालिका के माता पिता नहीं हैं। सिद्धार्थनगर में जहां सरकार द्वारा प्रवासियों को सरकारी राशन तहसील प्रशासन द्वारा प्रत्येक गांव में दिया जा रहा है, वहीं बनहती गांव में लेखपालों की लापरवाही के चलते प्रवासी मजदूरों को राशन नहीं मिला। परदेशियों को सरकारी राशन न मिलने को लेकर बांसी तहसील पहुंचे समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष मोनू दुबे व 2 दर्जन प्रवासी श्रमिक शुक्रवार को उप जिलाधिकारी शिव मूर्ति सिंह से श्रमिकों को सरकारी राशन न मिलने की एवं लेखपालों की लापरवाही पर कार्रवाई करने की मांग की, जिस पर उप जिलाधिकारी ने लेखपाल को बुलाकर तुरंत सत्यापन कराने के आदेश दिए। अम्बेडकर नगर में कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेसियों ने सेवानिवृत्त फौजी भाइयों से मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना एवं उन्हें अंग वस्त्र माला और पुष्प से सम्मानित किया। नेवी के अधिकारी रहे सुरेंद्र कुमार तिवारी व आर्मी मेडिकल फोर्स के हवलदार रहे पवन कुमार शर्मा को कांग्रेस नेता रेहान जैदी, प्रोफेशनल कांग्रेस के सदस्य संजीव कुमार, यूथ कांग्रेस समन्वयक विकल्प मिश्रा ने सम्मानित किया। देवबंद में जामिया तिब्बिया मेडिकल कॉलेज के सचिव डॉक्टर अनवर सईद व प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर अख्तर सईद को कोविड-19 में विशेष योगदान देने तथा उनके कार्यों के लिए प्रशासन की ओर से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रशस्ति पत्र एसडीएम व सीओ के द्वारा दिया गया। एसडीएम देवेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि 31 मार्च को जामिया तिब्बिया को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, जो जनपद का सबसे बड़ा सेंटर था। इसमें भर्ती रोगियों की डॉक्टर अनवर, डॉक्टर सईद एवं स्टाफ के द्वारा धर्म से ऊपर उठकर सेवा की जा रही थी, जो सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। मोहम्मदी खीरी में नगर के मोहल्ला सरैया के बाद अब नगर सीमा पर स्थित ग्राम दिलावरपुर एवं सदियापुर में एक संक्रमित व्यक्ति पाए जाने से खलबली मची है। दोनों संक्रमित व्यक्ति दिल्ली हरियाणा में मजदूरी करते थे, वहीं से वापस आए थे। जांच के उपरांत दोनों को होम क्वारंटाइन करते हुए पुलिस एवं प्रशासन ने दोनों गाँव का 250 मीटर का एरिया सील कर दिया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव विवेक बंसल ने कहा है कि अलीगढ़ के लोग कोरोना की जांच जयपुर में भी करा सकते हैं। इस संबंध में उन्होंने राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा से अनुरोध किया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रीय सचिव विवेक बंसल ने कहा कि मैंने मंत्री से कहा था कि वे अपने यहाँ कोरोना जांच की क्षमताओं को और बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश को भी अपने यहाँ जांच करने की सुविधा उपलब्ध कराएं, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। आजमगढ़ में शासन द्वारा मनोनीत नगर पंचायत के सभासदों को संबंधित उप जिलाधिकारियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह के अंत में चीनी कार्रवाई में शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। सभासदों ने एक स्वर में कहा कि हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जनता की जरूरतों को शासन तक पहुंचाएंगे। कानपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेता राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर पर्यावरण बचाओ बीमारी भगाओ के संकल्प के साथ दर्शन पूर्वा समेत शीशामऊ विधानसभा के अंतर्गत 51 पेड़ों को लगाया गया। पेड़ों में पीपल, नीम, बरगद, कदम एवं आम के पेड़ों को लगाने का कार्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य अवनीश सलूजा के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर पार्षद राकेश साहू, धर्मेंद्र चौहान, पूर्व पार्षद अब्दुल जब्बार, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कोऑर्डिनेटर हरमेंद्र सिंह, मुकेश वाल्मीकि, धीरज तांबे आदि मौजूद रहे। आँखों से तासुब के हट जाएंगे सब पर्दे, पढ़कर तो जरा देखो एक बार अवधनामा,